Now, in this lecture, we will continue our discussion on standard formula and elementary manipulation questions. मतलब हम छोटे छोटे चेंजेस करके कन्वर्जन्स करके अपनी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उन्हें सॉल्व करेंगे. तो ठीक है, लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन 4th, and we are given that x square plus cos square x upon 1 plus x square dx. Obviously स्टैंडर्ड फॉर्मूले में नहीं है, तो we'll have to think of somehow converting this into स्टैंडर्ड फॉर्म. तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है वो हम बना लेते हैं न्यूमरेटर में. तो we'll add 1 and subtract 1, और cos square x कोई फर्क नहीं पड़ा dx. Now इसको हमने एक टर्म की तरह ट्रीट करा और इसको सेकेंड टर्म की तरह ट्रीट करा. तो what we do is x square plus 1 upon 1 plus x square and minus common 1 minus cos square x, and we have यहाँ पे cosec square x, यहाँ भी cosec square x multiplied है, and upon 1 plus x square into cosec square x dx. तो what we do is इसमें तो कैंसिल हो गया, and we have with cosec square multiply हुआ तो cosec square x which is a standard form minus 1 minus cos square x 6 is sin square x into cosec square x upon 1 plus x square dx. तो तो मिलके क्या हो गया, 1 हो गया. तो now cosec square x का इंटीग्रल is what, minus cot x, and 1 upon 1 plus x square का इंटीग्रल is what, tan inverse x plus c. Let's take the fifth question. Tan x into tan x plus sec x the whole square. So obviously we will expand this. तो क्या आ जाएगा, sec square x plus tan square x plus 2 tan x sec x. तो इसमें हम we can separate all the three integrals. इसको separate कर सकते हैं, जिसमें इसका स्टैंडर्ड पता है, tan x sec x का पता है. The only thing that we don't know is tan square x. तो उसको हम क्या लिख देंगे, sec square x. We'll convert this into sec square x minus 1 plus 2 tan x sec x dx. ये कन्वर्ट हो गया 2 sec square x minus 1 plus 2 tan x sec x dx. इंडिविजुअली अलग अलग कर लेंगे तो ट्वाइस बाहर sec square x dx minus 1 dx and then 2 बाहर tan x sec x dx. तो दिस बिकम्स 2 tan x, sec square x का tan x होता है, 1 का x होता है, एंड tan x sec x का sec x होता है, प्लस c. We take the sixth question now. 1 minus cos x into cosec square x dx. तो मल्टीप्लाई करने तो क्या आ जाएगा, cosec square x क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज हमको स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है, माइनस cos x into cosec square x dx. तो cosec square x का तो सीधे माइनस cot x हो गया, माइनस cos x upon sin square x. This thing can be written as cot x into cosec x dx, और ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया, माइनस cot x एंड माइनस cosec x, तो ये प्लस हो गया, प्लस cosec x plus c. Let's take the seventh question. Seventh is a की power mx and b की power nx. Now, how can we convert this into standard form rather? तो इसको हम लिख सकते हैं a raised to power m into b raised to power n. Let's say individually x and this is also raised to power x dx. This thing can be written as a raised to power n into b raised to power n whole dx or whole raised to power x dx. अब ये तो हमारे लिए कांस्टेंट है, ये किस फॉर्म का हो गया, a raised to power x dx का फॉर्म हो गया. इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, a raised to power x upon ln a plus c. तो द आंसर वुड बी a raised to power n b raised to power n whole x divided by ln a raised to power n b raised to power n plus c. Now let's take the 8th question.
What does the 8th question say? Tan x upon sec x plus tan x. Tan x upon sec x plus tan x. Now, in such questions, a point to note is, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स हो, या 1 प्लस माइनस साइन एक्स हो, या 1 प्लस माइनस कॉस एक्स हो, या सेक एक्स प्लस माइनस टैन एक्स हो, या कोसेक एक्स प्लस माइनस cot x हो, in such cases the first thing that you should think of is of rationalization. इनको रैशनलाइज कर देंगे तो हमारा, जैसे 1 प्लस साइन एक्स है तो उसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स. अगर 1 प्लस माइनस कॉस एक्स है उसको रैशनलाइज करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा. सेक एक्स माइनस टैन एक्स है, सेक एक्स प्लस टैन एक्स को रैशनलाइज करेंगे तो 1 मिल जाएगा. सिमिलरली कोसेक एक्स प्लस माइनस कॉट एक्स को रैशनलाइज करेंगे तो 1 मिल जाएगा. तो फर्स्ट लाइन ऑफ थिंकिंग तो यही होनी चाहिए कि रैशनलाइज करके सोच लें कि उससे कुछ हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं. तो रैशनलाइज कर दिया, सेक एक्स माइनस टैन एक्स डी एक्स, तो डिनोमिनेटर बिकम्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स विच इज ऑब्वियसली 1, और ऊपर क्या आ जाएगा, टैन एक्स सेक एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स. ये तो 1 हो गया. तो वी आर लेफ्ट विद टैन एक्स सेक एक्स, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको अलग कर लिया. माइनस टैन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स. दिस टैन एक्स सेक एक्स कैन बी रिटन एज सेक एक्स माइनस, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे डी एक्स एंड 1 डी एक्स. तो सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स इज अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका इंटीग्रल इज टैन एक्स और 1 का हो गया एक्स प्लस सी. तो हम सारे इंटीग्रल्स को क्लब करके एक ही बार कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं. लेट्स टेक द 9th क्वेश्चन. वी हैव x raised to the 3 plus 8 into x minus 1 whole divided by x square minus 2x plus 4 dx. Now, one of the student will think कि नीचे x minus 2 का whole square दिख रहा है, और अदर नहीं, सॉरी नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, एंड वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस डिनोमिनेटर समहाउ. तो इन द न्यूमरेटर वी सी दैट ये जो फॉर्म लिखा है ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्म है. तो a क्यूब प्लस b क्यूब कैन बी रिटन एज a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab. तो यहाँ पे a की जगह है x और b की जगह है 2. तो हाउ कैन वी राइट दिस, a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इंटू x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx. तो ये पार्ट कैंसिल हो गया एंड वी कैन मल्टीप्लाई द टू लीनियर फैक्टर्स. तो हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x इज प्लस ऑफ x माइनस 2 dx. ये तो इंडिविजुअली हम तीनों का इंटीग्रल जानते हैं, x dx एंड माइनस 2 बाहर 1 dx. x स्क्वायर का हो गया x क्यूब बाई 3 प्लस x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस c. दिस इज योर आंसर. इन सारे क्वेश्चंस में हम लोग क्या देख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं. लेट्स टेक द 10th क्वेश्चन. वी हैव sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx. नाउ sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x हमें a क्यूब प्लस b क्यूब की तरह दिख रहा है एंड वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी, लेकिन उससे हमारा कुछ सॉल्व होगा नहीं. तो व्हाट वी डू इज, हम इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं हर टर्म को sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x से एंड सी व्हाट हैपेंस, cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x. तो cos स्क्वायर x से एक cos x बचा एंड sin स्क्वायर x से एक sin x बचा. तो sin x अपॉन cos x इज tan x एंड 1 अपॉन cos x इज sec x. एंड यहाँ पे बच गया cos x अपॉन sin x इज cot x एंड 1 अपॉन sin x इज cosec x. एंड नाउ ये दोनों ही फॉर्म्स हमारे स्टैंडर्ड है, tan x इंटू sec x dx प्लस cot x इंटू cosec x dx. तो tan x sec x का हो गया sec x एंड cot x cosec x का हो गया माइनस cosec x प्लस c. Now we'll take more examples.
on the same concept. So let's solve this one. We have dx upon 3x plus 4 का whole cube. Now identify that 1 upon x square dx होता तो we could have written this as x square x raised to minus 2 dx, और इसका इंटीग्रल क्या होता है माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c. तो नाउ इंस्टेड ऑफ x हमने क्या रिप्लेस कर दिया है 3x प्लस 4 से x को रिप्लेस कर दिया एंड विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस b. तो हमारा इंटीग्रल क्या होगा अकॉर्डिंग टू अ रूल, सेम x की जगह बस 3x प्लस 4 हम रिप्लेस कर देंगे माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और किससे डिवाइड कर देंगे इसके डिफरेंशियल से. तो इसका डिफरेंशियल 3x प्लस 4 का क्या है 3 है. तो देयरफॉर इसका इंटीग्रल कैसे लिख सकते हैं 3x प्लस 4 होल रेज्ड टू पावर माइनस 2 dx, और ये क्या आएगा इसका इंटीग्रल हो जाएगा 3x प्लस 4 होल रेज्ड टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और 3x प्लस 4 का डिफरेंशियल क्या होगा 3 प्लस c. तो दिस वुड गिव यू माइनस ऑफ 1/3 3x प्लस 4 प्लस c. ठीक है. Let's take the 12th question. We have dx upon 1 plus 4x plus 2 का whole square. Now identify the form कि dx upon 1 plus x square is tan inverse x. Now instead of this x हमने इस क्वेश्चन में क्या कन्वर्ट लिख दिया है 4x plus 2, एंड 4x plus 2 जो फॉर्म है दैट इज ऑफ द फॉर्म ax plus b, लीनियर फॉर्म ही है. तो एग्जैक्टली यही इंटीग्रल आएगा, x की जगह क्या आ जाएगा 4x plus 2, और डिवाइड किससे करना पड़ेगा 4x plus 2 के डिफरेंशिएशन से. तो योर आंसर वुड बी tan इनवर्स 4x plus 2, और 4x plus 2 का डिफरेंशिएशन है 4 से डिवाइड कर दिया प्लस c. Let's take the 13th question. What does this say? Root 4x minus 1. Root 4x minus 1. Now again think, अगर root x होता, root x can be written as x raised to power half dx. इसका इंटीग्रल होता है हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c. अब x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया इन्होंने 4x माइनस 1 विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस b. एग्जैक्टली यही इंटीग्रल आएगा, बस किससे हमें डिवाइड करना होगा 4x माइनस 1 के डिफरेंशियल से. तो आंसर वुड बी 4x माइनस 1 रेज टू पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, और 4x माइनस 1 का डिफरेंशियल क्या है 4 है, उससे हम डिवाइड कर देंगे प्लस c. तो दिस गिव्स यू 4x माइनस 1 होल रेज टू पावर 3/2, और ये हो जाएगा 3/2 इंटू 4, तो कैंसिल हो गया. तो वी हैव 4x माइनस 1 whole raised to power 3/2 upon 6 plus c. ठीक है. Let's take the 14th question now. dx upon x raised to power 4. Now this is quite easy. ये क्या होगा x raised to power minus 4 dx. ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ही. तो आंसर क्या होगा माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 प्लस c. दैट गिव्स यू माइनस 1 अपॉन 3x क्यूब प्लस c. Let's take the 15th one. 1 upon 4x plus 1. Now हमको पता है 1 upon x dx is your standard form, ये होता है ln x. Now instead of x हमने क्या रिप्लेस कर दिया है 4x plus 1, and which is of the form ax plus b. तो exactly यही इंटीग्रल आएगा, बस x की जगह क्या आ जाएगा 4x plus 1, and we'll have to divide by the डिफरेंशिएशन ऑफ 4x प्लस 1. 4x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या है 4 प्लस c. लेट्स टेक द 16th वन. e रेज टू पावर 2x माइनस 1 होल रेज टू पावर 4 dx. तो दिस कैन बी रिटन एज e रेज टू पावर की पावर इज मल्टीप्लाइड, यानी 8x माइनस 4 dx. नाउ थिंक ऑफ दिस, e की पावर x dx का क्या इंटीग्रल था e की पावर x प्लस c. इंस्टेड ऑफ दिस x वी हैव रिप्लेस्ड दिस बाय 8x माइनस 4 जो कि ax प्लस b का फॉर्म है. तो एग्जैक्टली यही इंटीग्रल आएगा, बस क्या होगा वी हैव टू डिवाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ 8x माइनस 4, और x की जगह क्या लिखना शुरू कर देंगे 8x माइनस 4. तो द आंसर वुड बी e रेज टू पावर 8x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 8 प्लस c. लेट्स टेक द 17th वन.
17th क्या है, कोसेक स्क्वायर 1 माइनस 4x, कोसेक स्क्वायर 1 माइनस 4x dx. नाउ अगेन थिंक, कोसेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रल हमने पढ़ा माइनस कॉट x प्लस सी. इंस्टेड ऑफ दिस x वी हैव रिप्लेस्ड दिस बाय 1 माइनस 4x जो कि ax प्लस b के ही फॉर्म का है, लीनियर फॉर्म. तो एग्जैक्टली यही इंटीग्रल आएगा, बस x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस 4x, और हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1 माइनस 4x के डिफरेंशिएशन से. तो ये आंसर वुड बी माइनस ऑफ कॉट 1 माइनस 4x एंड वी विल हैव टू डिवाइड इट बाय माइनस 4 प्लस c. तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वी हैव कॉट 1 माइनस 4x प्लस c. लेट्स टेक द 18th क्वेश्चन. 18th क्वेश्चन क्या कहता है, x into फिफ्थ रूट ऑफ रूट x प्लस 1 dx. नाउ फिफ्थ रूट ऑफ x प्लस 1 और x तो क्लब हो नहीं रहे, एंड समहाउ में इसे अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में कोशिश करना बन जाए. तो व्हाट वी डू इज वी मैनिपुलेट, हम x को x प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं एंड फिफ्थ रूट ऑफ x प्लस 1 dx एज इट इज. नाउ इसको हम एक टर्म कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज ये टर्म हमें इसके साथ सेम दिख रही है. तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ x प्लस 1 एक साथ कर लिया एंड माइनस फिफ्थ रूट ऑफ x प्लस 1 dx अलग कर लिया. इसको अगर हम क्लब कर दें तो x प्लस 1 रेज टू पावर 6/5 माइनस x प्लस 1 रेज टू पावर 1/5. नाउ ये तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स हो गए. तो इंडिविजुअली अगर हम इंटीग्रेट कर दें इन्हें तो हमको पता है x रेज टू पावर n का इंटीग्रल क्या होता है dx, x रेज टू पावर n अपॉन x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. अब यहाँ x की जगह क्या आ गया है, x प्लस 1 आ गया विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस b. तो बस x की जगह x प्लस 1 लिखना शुरू कर देंगे और ax प्लस b यानी x प्लस 1 के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे. लेकिन x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन तो 1 ही है, तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग. तो x प्लस 1 रेज टू पावर 6/5 प्लस 1 अपॉन 6/5 प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही है, माइनस x प्लस 1 रेज टू पावर 1/5 प्लस 1 एंड 1/5 प्लस 1 एंड विल डिवाइड बाय 1 जो कि कोई दिखेगा ही नहीं हमें. तो दिस इज x प्लस 1 होल रेज टू पावर 11/5 और ये हो गया 11/5 माइनस दिस वुड बी x प्लस 1 होल रेज टू पावर 6/5 एंड दिस वुड बी 6/5 प्लस c. Now let's take the 19th question. And what does 19th question say? Sec square 2x plus 5. The 19th question says sec square 2x plus 5 d of 2x plus 5. Now, a few students will think कि भैया इसका तो tan 2x plus 5 upon 2 आएगा, which is absolutely wrong. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जिसके टर्म्स हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और जो यहाँ आर्ग्यूमेंट एग्जैक्टली सेम है. तो हम लोग ने कहा था कि अगर एफ एक्स डी एक्स जी एक्स होता है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स जी एक्स होता है, तो इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी विल बी जी टी प्लस सी. मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अगर वही आर्ग्यूमेंट थ्रू आउट है तो हमारा कोई चेंज नहीं होता है. यहाँ पे भी 2x प्लस 5 है, यहाँ भी 2x प्लस 5 है, तो ये तो सेम आर्ग्यूमेंट्स हैं. तो इसका आंसर सीधे सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x होता है, तो यानी tan 2x प्लस 5 प्लस सी. यहाँ पे बाई 2 नहीं होगा. हाँ, ये कब होता, जब सेक स्क्वायर 2x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू dx होता, तो फिर यहाँ पे क्या होता, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x प्लस सी, और यहाँ पे x की जगह लीनियर फंक्शन आ गया था 2x प्लस 5, तो उसके डिफरेंशिएशन से हमें डिवाइड करना पड़ता. लेकिन क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है तो फिर हमें यहाँ डिवाइड नहीं करना होगा. तो योर आंसर वुड बी tan 2x प्लस 5 प्लस c. लेट्स टेक द 20th क्वेश्चन. Now 20th क्वेश्चन क्या है, cos 3x plus 2 d of 2x plus 3. Now straight away the students will say कि इसका आंसर हो गया sin 3x plus 2 plus c, which is again absolutely wrong. क्योंकि इस बार देखिए ये और ये पार्ट सेम नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और जो आर्गुमेंट है वो सेम नहीं है.
व्हाट वी डू इन सच केसेस कि हमने पहले एक चीज हम लोग कर चुके हैं कि डी ऑफ जी एक्स अगर हमें करना है तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, जी एक्स को डिफरेंशिएट करें एंड विल राइट जी डी एक्स, और इसको सोच कैसे रहे, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या लिखते हैं हम, जी डैश एक्स। तो अब डी एक्स को अगर हम राइट साइड ले जाएं तो डी ऑफ जी एक्स सिंपली क्या हो गया, जी डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो यानी अगर हमको d के अंदर x को छोड़ के कोई भी डिफरेंट फंक्शन दिखेगा तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और dx एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर देंगे। लेट्स से वी हैव d ऑफ sin y, हम लोग कर चुके हैं ये, तो sin y क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा cos y, और इस बार क्योंकि x की नहीं जगह y आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे dy। जैसे अगर हमें दिया है d ऑफ e की पावर x तो हम इसको क्या लिखेंगे e की पावर x और dx। हमको दिया है d ऑफ sin इनवर्स x तो हम क्या लिख देंगे इसको 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है तो व्हाट विल डू इज cos 3x + 2 एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन हम क्या लिखेंगे ट्वाइस ऑफ dx, 2x + 3 का डिफरेंशिएशन 2 और देन dx, तो 2 बाहर cos 3x + 2 इंटू dx। अब ये तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अगर इंटीग्रल ऑफ cos x dx होता तो हम लिखते sin x + c। इंस्टेड ऑफ दिस x वी हैव रिप्लेस्ड x by 3x + 2 which is of the form ax + b। तो हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, हम x की जगह 3x + 2 लिखेंगे एंड वील डिवाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ 3x + 2। तो हमारा आंसर क्या होगा ट्वाइस sin 3x + 2 एंड वील डिवाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ 3x + 2 which is 3 plus c। दिस वुड बी आंसर। टू रिमाइंड यू, हम लोग ने कहा था कि अगर एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल जी एक्स है तो इंटीग्रल ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स क्या था, सेम फंक्शन जी आएगा, बस एक्स की जगह क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एंड विल डिवाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी विच इज ए प्लस सी। ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा था, वही हम लोग इसमें लगा रहे हैं। नाउ we continue further and take more examples on the same concept कि हमें elementary manipulations करके अपने standard form में कोशिश करना है बदलने and integrate करें। Let's take this example 21st and इसमें हम लोग एक property ध्यान करेंगे कि a raised to power log ax is x, ये वाली प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे। एंड इसमें क्या होगा 5 रेज टू पावर, हाउ कैन वी राइट दिस, लॉग बेस 25, ये 2 जो है हमारा इसमें एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 dx। नाउ हमको एक प्रॉपर्टी पता है लॉग a रेज टू पावर m एंड b रेज टू पावर n हो तो n हमारा न्यूमरेटर में आ जाता है एंड m हमारा डिनोमिनेटर में आ जाता है, दैट इज वी कैन राइट दिस एज n/m log बेस a b। तो हाउ कैन वी राइट दिस, log 25 को क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 5 रेज टू पावर, ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो 1/2 log बेस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। नाउ दिस थिंग कैन बी रिटन एज, ये जो हाफ है दैट विल गो इन दिस पावर, तो log बेस 5 एक्स स्क्वायर की पावर हाफ प्लस 2। Now this thing can be written as 5 log 5 x square की पावर रूट करेंगे तो x बचेगा एंड देन आई कैन ब्रेक दिस 5 रेज टू पावर दिस प्लस दिस कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर dx। 5 स्क्वायर 25 इज टेकन आउट एंड ये a log ax का फॉर्म है, तो व्हाट वी कैन राइट दिस एज x dx, और x dx तो स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसका सीधे सीधे इंटीग्रल हो गया 5x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। नाउ क्वेश्चन 22 लेते हैं। 22 and 23 are the working is exactly same, sin raised to power 4x dx। Now the concept is you have to note that कि अगर आपको क्वेश्चन sin raised to power p x dx मिले या cos raised to power p x dx मिले तो p could be even और p could be odd and p belongs to natural number है। तो in such cases what we'll do is
अगर इवन है तो क्या पावर्स हो सकती हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. ऑड है तो 1, 3, 5, 7 सो ऑन. तो ऑब्वियसली 1 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. 2 है, 4 है, 6 है, 8 है. तो इन सच केसेस वी यूज डबल एंगल फॉर्मूला टू गेट रिड ऑफ द पावर्स. और अगर पावर 3 है, स्पेशली 3 है, 5 तो नहीं, सिर्फ 3 है, तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे. मतलब cos क्यूब x है या sin क्यूब x है तो वील यूज ट्रिपल एंगल फॉर्मूला टू गेट रिड ऑफ द पावर्स. पहले sin रेस्ट पावर 4x ट्राई करते हैं. तो sin रेस्ट पावर 4x को वी कैन राइट दिस एज sin स्क्वायर x होल रेस्ट पावर 2 dx. नाउ नोट करना है कि डबल एंगल जो फॉर्मूला हमने लिखा है, व्हाट डज दिस मीन. हमें पता है 1 प्लस cos 2x कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर x and 1 minus cos 2x can be written as 2 sin square x. मतलब अगर हमें cos square मतलब power of 2 है cos में, we can get rid of this power by using this formula. 1 plus cos 2x by 2 लिख देंगे, और sin square x को अगर खत्म करना है तो 1 minus cos 2x by 2 लिख सकते हैं. बस the thing is यहाँ पे जो x है उसका डबल हो जाएगा यहाँ एंगल, ये हमें ध्यान रखना है. sin square x है तो माइनस यूज करेंगे, cos square x है तो प्लस यूज करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास है sin स्क्वायर x, तो पावर 2 है तो वी कैन राइट दिस एज 1 माइनस cos 2x बाय 2 का होल स्क्वायर dx. नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस. स्क्वायर किया तो 1/4 बाहर एंड a माइनस b का होल स्क्वायर यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab dx. नाउ अगेन हमको cos स्क्वायर x दिख गया तो अगेन वील यूज दिस प्रॉपर्टी. बस हमें क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि 1 प्लस कॉस डबल होता जाता है जो एंगल यहाँ पे लिखा है. तो आई कैन राइट दिस एज 1 प्लस कॉस 4x बाय 2 माइनस 2 कॉस 2x. द आइडिया इज टू गेट रिड ऑफ द पावर्स. हमें पावर्स खत्म करने हैं. तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x dx, और 2 हमारा बाहर आ जाएगा. ऑन सिंप्लीफाइंग वी हैव 1/8 3 plus cos 4x minus 4 cos 2x dx. तो इसका इंडिविजुअली अगर हम इंटीग्रेशन करें तो 3 बाहर 1 dx प्लस cos 4x dx एंड माइनस 4 बाहर cos 2x dx. इफ यू लुक क्लोजली, ये तो हमारे सब स्टैंडर्ड फॉर्म ही है. 1 का हो गया x, cos 4x में ये लीनियर पार्ट है ax प्लस b के फॉर्म में, तो cos 4x का sin 4x एंड 4x का डिफरेंशिएशन 4 से डिवाइड कर दिया, माइनस 4 इंटू कॉस 2x का साइन 2x एंड 2x का डिफरेंशिएशन 2 एंड वील ऐड प्लस c. नाउ इफ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 23rd क्वेश्चन इज नथिंग डिफरेंट, cos रेज टू पावर 4x dx है. इसमें क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx. नाउ इंस्टेड ऑफ 1 माइनस cos 2x बाय 2 लिखने के हम क्या लिख देंगे 1 प्लस cos 2x बाय 2 का होल स्क्वायर dx, एंड रेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल बी एग्जैक्टली सेम, बस सिर्फ एक साइन का डिफरेंस आएगा. यहाँ पे जो हमारा माइनस आया था वो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा. बाकी द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम. लेट्स से वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन. 24th क्वेश्चन सेज वी हैव dx अपॉन x प्लस 3 इंटू x प्लस 6. Now x plus 3 into x plus 6, ये जो क्वेश्चन है नीचे, if we multiply we get a quadratic expression. अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो later on when we'll study more cases, more types of methods, तो इसको कैसे डील करना है we'll study. But यहाँ पे हमें वो methods नहीं मालूम है, तो how do we study this? How do we solve this? So what we do is we write x plus 3x and into x plus 3 into x plus 6 न्यूमरेटर में as x plus 6 minus x plus 3 अपॉन x plus 6 into x plus 3. बट अब इससे हुआ क्या कि ऊपर 3 बच रहा है जबकि ऊपर 1 था, तो व्हाट वी डू इज वी डिवाइड बाय 1/3. अब 1 ही आएगा न्यूमरेटर में, तो एग्जैक्टली सेम है लेफ्ट हैंड साइड के. नाउ व्हाट वी डू इज वी डिवाइड बोथ द टर्म्स बाय x plus 6 and x plus 3. तो x plus 6 अपॉन x plus 6 into x plus 3 minus
एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो गया, एक्स प्लस सिक्स कैंसिल हो गया। इंडिविजुअली हम लोग दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, वन अपॉन एक्स प्लस थ्री डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सिक्स डी एक्स। ये तो हमारे लिए नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। वन अपॉन एक्स डी एक्स का क्या होता था, एल एन एक्स प्लस सी, और x की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया है, x प्लस थ्री और x प्लस सिक्स, जो कि x प्लस बी के फॉर्म का है। तो व्हाट विल डू, x की जगह x प्लस थ्री और x प्लस सिक्स रिप्लेस करेंगे और इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे। बट x प्लस थ्री और x प्लस सिक्स का डिफरेंशिएशन तो दोनों ही केस में वन है, तो कोई हमें चेंज दिखेगा ही नहीं। तो एल एन एक्स प्लस थ्री माइनस एल एन एक्स प्लस सिक्स प्लस सी, एंड आई कैन राइट दिस एज वन अपॉन थ्री एल एन एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस सिक्स प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रल हो जाएगा। 25th देखते हैं। नाउ 25th क्वेश्चन जो है x रेज टू पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। नाउ ये इंपॉर्टेंट नोट करेंगे कि इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल फंक्शन upon polynomial function and degree of numerator is greater than equal to degree of denominator। न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो या तो डिनोमिनेटर के बराबर हो या ज़्यादा हो, तो what we'll do, we'll divide the expression। या तो डिवाइड करेंगे या we'll use manipulation, ट्रिक भी यूज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। तो लेट्स से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, इफ वी डिवाइड दिस, तो x रेज टू पावर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x रेज टू पावर 4 एक्स 6 प्लस एक्स 4, व्हाट डू वी गेट, माइनस एक्स 4, तो माइनस एक्स स्क्वायर से करा, माइनस एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, चेंज द साइन, तो आ गया एक्स स्क्वायर, एंड देन वील मल्टीप्लाई बाय 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन चेंज माइनस 1। तो हाउ कैन वी राइट दिस, एक्स रेज टू पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटन एज कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो ये क्या हो गया, अच्छा ये चीज क्या है, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर। तो डिविडेंड अपॉन डिवाइजर कैन बी रिटन एज कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो हाउ कैन वी राइट दिस, x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड रिमाइंडर इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग दिस वील इंटीग्रेट x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx रादर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। नाउ इफ यू लुक क्लोजली, अगर हम सब इंटीग्रल्स अलग कर दें तो सब स्टैंडर्ड हो गए हमारे, प्लस 1 dx एंड माइनस 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। Now x4 is integral क्या आएगा, x5 by 5 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x माइनस tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रल हो गया इसका। अगर यही चीज़ हम मैनिपुलेशन से ट्राई करते तो क्या करते, x6 माइनस 1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। देन x6 प्लस 1 को हम लिखते, x6 को क्या लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ अलग कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। नाउ इसको हम लोग क्या कर सकते थे, ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्म है, तो वी वुड हैव रिटन a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab यानी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड ये होता माइनस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से कट गया, एंड चेक करिए एग्जैक्टली सेम इंटीग्रल आपका आ रहा है, x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। चेक करिए एग्जैक्टली यही हमारा डिवीजन से भी आया था। ये देखिए, तो वी गेट द सेम आंसर। अब ये डिपेंड करता है कि आप डिवीजन में कंफर्टेबल हैं, ये मैनिपुलेशन आप सोच पा रहे हैं। यू कैन यूज बोथ ऑफ देम। वंस यू गेट एक्सपीरियंस तो फिर आप इसको मैनिपुलेशन से ही करेंगे, डिवीजन नहीं करेंगे आप।
Next we have tan x sec x dx. Let's say we have 26th question. We have tan x sec x and dx degree. Now at first instance the student will say इसका आंसर sec x है, tan x sec x, and which is wrong. क्यों? क्योंकि यहाँ x डिग्रीज दिया है और यहाँ x जो दिया है वो रेडियंस में, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो ये आर्ग्यूमेंट नहीं है. तो वील हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियंस या इसको डिग्रीज में करें. तो व्हाट वी डू इज, हमें पता है कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियंस होता है. तो x डिग्रीज क्या होगा, पाई अपॉन 180 इंटू x इतने रेडियंस. तो dx डिग्री को हम लिख सकते हैं d x डिग्री की जगह हम लिख देंगे पाई अपॉन 180 इंटू एक्स. नाउ d ऑफ दिस वुड बी व्हाट, पाई बाय 180 बाहर, x का 1 हो गया डिफरेंशिएशन, एंड वील राइट dx. कैसे हमने कराया था, d ऑफ gx क्या बताया था, g डैश x एंड dx. तो ये कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन tan x sec x इंटू पाई बाय 180 dx. नाउ ये तो अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, पाई बाय 180 इज कांस्टेंट विच इज टेकन आउट एंड वी हैव tan x sec x इंटू dx. तो ये तो स्टैंडर्ड है विच इज sec x प्लस c. दिस इज योर आंसर. Now we continue further and take the next set of questions, and we have to integrate cos raised to power 6x. Now cos raised to power 6x हो या sin raised to power 6x हो, process हमारा exactly same रहेगा. Now what can we do is, we can write this as cos cube x whole raised to power 2. Now some students might say कि इसको हम cos square x का क्यूब भी लिख सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इन दिस इज, इसको तो हम डबल एंगल से कन्वर्ट कर लेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब यानी हर टर्म का क्यूब होगा. एंड पहली बात तो टर्म्स ज़्यादा आएंगे, दूसरे क्यूब से डील करना पड़ेगा, एंड दैट वुड बी डिफिकल्ट. कन्वर्टिंग क्यूब्स मतलब पावर क्यूब को ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग पहले क्यूब को ख़त्म करेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे. तो वी नो दैट cos 3x इज 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. हमने कहा था कि अगर पावर ऑड है मतलब 3 पावर है तो हम इसे ट्रिपल एंगल से ख़त्म करेंगे पावर को. तो ट्रिपल एंगल अगर हम यूज़ करते हैं, लेट्स राइट दिस प्रॉपरली, cos क्यूब x है ये, ठीक है, सॉरी ये 3x ही है, दिस इज 3x cos 3x. तो cos क्यूब x की जगह व्हाट वी कैन डू इज cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4. मतलब अगर हमें पावर 3 दी है साइन या कॉस में, तो वील गेट रिड ऑफ दैट पावर. वो क्यूब को हम कैसे खत्म करेंगे, ट्रिपल एंगल को यूज करके ही खत्म करेंगे. तो व्हाट वी कैन राइट, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 का होल स्क्वायर dx. नाउ 4 का स्क्वायर तो 1/16 बाहर हो गया, एंड स्क्वायर कर देंगे तो cos स्क्वायर 3x 9 cos स्क्वायर x एंड 2ab यानी 6 cos x cos 3x dx. नाउ अब ये पावर्स 2 आ गए, cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर 3x, और उसको हमें कन्वर्ट करना आता है. वी कैन राइट 1 प्लस cos 2x एज 2 cos स्क्वायर x. तो अगर पावर 2 है cos स्क्वायर या sin स्क्वायर में तो हम डबल एंगल यूज करेंगे. बस याद क्या रखना है कि यहाँ अगर एंगल x है तो यहाँ 2x होगा. तो व्हाट वी कैन राइट इज 1/16 cos स्क्वायर 3x को क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 6x by 2, 9 times cos square x को 1 plus cos 2x by 2 and 6 cos 3x and cos x dx. Now 2 LCM लिया तो 1/32 बाहर, and we have 1 plus cos 6x plus 9 times of 9 cos 2x, and we'll have 12 cos 3x cos x dx. Now club कर लें like terms, तो we have 10 plus cos 6x plus cos 9 times cos 2x and 12. Now इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, वो बाकी देखें तो हमारा सब स्टैंडर्ड में आ गया है. We can write this as 2 into cos 3x into cos x.
ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज हमको क्या फॉर्म दिख रहा है, 2 cos c cos d, एंड दिस कैन बी रिटन एज cos c प्लस d प्लस cos c माइनस d, क्योंकि cos इंटू cos का तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला अभी पढ़ा ही नहीं हमने, तो हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. तो दिस इज 9 cos 2x एंड दिस इज 6 इंटू, हाउ कैन आई राइट दिस, cos c प्लस d, मतलब 3x प्लस x इज 4x एंड cos c माइनस d 3x माइनस x विच इज cos 2x. अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 10 प्लस cos 6x प्लस 9 cos 2x एंड 6 cos 2x, यानी 15 cos 2x and 6 cos 4x dx. Now if you look closely, अब सारे ही हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, तो इंडिविजुअली अगर इंटीग्रेट करें तो 10 इंटीग्रल 1 dx इंटीग्रल cos 6x dx, 15 बाहर cos 2x dx and 6 बाहर cos 4x dx, and each of them we can find very easily. 1 का हो गया x, cos 6x का sin 6x by 6, 15 cos 2x का sin 2x by 2 and 6 cos 4x का sin 4x by 4 plus c. तो जब पावर 6 होंगी तो we'll have to convert them into पहले क्यूब का स्क्वायर, एंड क्यूब में ट्रिपल एंगल यूज करके वो क्यूब खत्म करेंगे, और फिर जो स्क्वायर्स आएंगे उनको डबल एंगल यूज करके खत्म करेंगे. Let's say we have the next question, integral sin x sin 5x dx 28. Now ये तो फिर हमको वही फॉर्म दिख रहा है, 2 sin c sin d, तो हम इसको 2 दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करें, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos c माइनस डी माइनस cos c प्लस डी. तो कन्वर्ट कर लें इस प्रोडक्ट को सम में. This can be written as cos c minus d, मतलब 5x minus x is 4x and minus cos c plus d which is 6x, and दोनों का इंडिविजुअली हम जानते हैं. cos 4x का क्या हो गया, sin 4x by 4 and cos 6x का इंटीग्रल sin 6x by 6 plus c. तो अगर आपको 2 sin c sin d फॉर्म दिखे, 2 cos c cos d फॉर्म दिखे, 2 sin c cos d फॉर्म दिखे, तो इसमें हम लोग को जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं वही यूज़ करने हैं. दिस इज cos c प्लस डी प्लस cos c माइनस डी. अगर 2 sin c cos d है और c ग्रेटर देन d है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 2 sin c प्लस डी प्लस sin c माइनस डी. और अगर sin और cos का कॉम्बिनेशन है लेकिन d एंगल बड़ा है c से, तो देन वील यूज sin c प्लस डी माइनस sin c माइनस डी. ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया. Now let's take the next question. Next is 29th question. Cos x, cos 2x, cos 4x and sin x. Now if you look closely, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम दो का कॉम्बिनेशन करके वही फॉर्मूले लगा लेंगे, 2 sin c sin d या 2 cos c cos d या 2 sin c sin d या sin c cos d. बट इफ यू लुक क्लोजली, यहाँ पे देखिए एंगल्स डबल हो रहे हैं और यहाँ पे sin x cos x का कॉम्बिनेशन है, तो हमें पता है कि 2 sin x cos x अगर होता है तो वी कैन राइट sin 2x. तो 2 नहीं है तो वी कैन गिव इट 2, एडजस्ट भी कर दिया, कोई फर्क नहीं. Now 2 sin x cos x will give you sin 2x, cos 2x already है, cos 4x dx. Now sin 2x cos 2x अगेन हमें दिख गया, तो हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, मेक्स नो डिफरेंस. लेकिन फिर हमको फॉर्मूला दिख गया 2 sin x cos x, मतलब 2 इंटू साइन एक्स और cos x हो तो sin 2x लिख सकते हैं. तो अगर यहाँ x की जगह जो भी एंगल होगा यहाँ, उसका डबल यहाँ होना है. तो यहाँ 2 sin 2x cos 2x है तो क्या लिख देंगे, sin 4x cos 4x dx. पर अगेन हमको फिर दिख गया sin 4x cos 4x, तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड. व्हाट डू आई गेट, 1/8, ये बन गया sin of 8x dx. और sin 8x dx का तो स्टैंडर्ड हो गया फॉर्म. sin 8x का क्या होगा, cos 8x माइनस का n/8
और 8 ऑलरेडी प्रेजेंट था, सो योर आंसर इज माइनस कॉस 8x अपॉन 64 प्लस c. ठीक है. नाउ लेट्स टेक द 30th क्वेश्चन. ठीक है. 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है? वी हैव टू फाइंड a and b if integral dx upon 1 plus sin x is equal to tan x by 2 plus a plus b. हमें a और b बताना. नाउ ऑब्वियसली हमने कहा था अगर 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स हो या 1 प्लस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स हो, डिनोमिनेटर में वी रैशनलाइज. बट अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो हमें ये tan नहीं मिलेगा. आंसर तब भी सही होगा बट हमें इसी फॉर्म में लाना है और इसी फॉर्म में ला के फिर ए और बी फाइंड आउट करना है कंपेयर करके. तो व्हाट वी डू इज, अब सोचिए यहाँ tan है तो यहाँ पे tan इंटीग्रेशन के बाद आया, यानी यहाँ पे सेक स्क्वायर का फॉर्म होना चाहिए और सेक स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर नीचे आए तभी ऊपर सेक स्क्वायर आ सकता है. तो व्हाट वी डू इज, अब हमें बस यहाँ ये एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा. कॉस एक्स को कैसे हम, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. नाउ ये हमें क्या फॉर्म दिख रहा है, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्म दिख रहा है. तो वी कैन राइट 2 कॉस स्क्वायर एक्स. हमेशा ध्यान रखिए 1 प्लस कॉस अगर दिखे तो वी कैन राइट इट एज 2 कॉस स्क्वायर और जो एंगल लिखा है उसका हाफ. सिमिलरली 1 माइनस कॉस 2x दिखे, 1 माइनस कॉस दिखे तो वी राइट इट एज 2 साइन स्क्वायर और जो एंगल यहाँ लिखा है उसका हाफ. तो ये 1 प्लस कॉस दिख रहा है यानी 2 कॉस स्क्वायर और जो भी एंगल लिखा है उसका हाफ. तो पाई बाय 2 माइनस एक्स होल बाय 2. तो दिस कैन बी रिटन एज dx अपॉन ट्वाइस कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2. तो 1 बाय 2 इज बाहर एंड वी टेक दिस इन न्यूमरेटर, तो क्या हो गया सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2. ठीक है. तो अब ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये तो लीनियर फॉर्म है. x की जगह क्या दिया है, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2. तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, 1 बाय 2 tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 एंड विल डिवाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पाई बाय 4 का 0 माइनस एक्स बाय 2 का माइनस हाफ प्लस c. तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया and we have minus of tan pi by 4 minus x by 2 plus c. ये माइनस हम अंदर ले जाएंगे तो हो गया tan x by 2 minus pi by 4 plus c. Now if we compare this with tan pi by x by 2 plus a plus b, तो a की वैल्यू क्या आ गई minus pi by 4 and b की वैल्यू क्या आ गई c, and c is what, arbitrary constant. तो इस क्वेश्चन में हमको जानबूझ के इस तरीके से इसको सॉल्व करना था कि हमारा इंटीग्रल के बाद tan के फॉर्म में हमारा आंसर आए, सो दैट वी कैन कंपेयर एंड फाइंड आउट a एंड b. वरना ये सवाल दूसरे तरीके से भी हो सकते थे. तो लेट्स टेक द 31st क्वेश्चन. ठीक है. तो लेट्स से वी हैव 31st क्वेश्चन, वी हैव cos x माइनस sin x अपॉन cos x plus sin x into 2 plus 2 sin 2x dx. Now, इस केस में भी हम लोग रैशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि cos और sin में तो हमने कहा भी नहीं था कि रैशनलाइज करना है. तो हमें एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि 1 प्लस साइन 2x क्या होता है, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2x हो तो यहाँ cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर. कैसे, 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और sin 2x को क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x. तो चेक करिए अगर प्लस है तो भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, और माइनस है तो भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो व्हाट वी डू इज, यहाँ से 2 हमने कॉमन निकाल लिया एंड वी हैव cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x. एंड यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस साइन 2x, और 1 प्लस साइन 2x की जगह हम क्या लिख देंगे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx. एक फैक्टर से एक कट गया, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्म दिख रहा है तो वी कैन राइट दिस एज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x
एंड cos square x माइनस sin square x इज cos 2x एंड विच इज, तो स्टैंडर्ड बन गया हमारा क्वेश्चन। तो ये हो गया sin 2x बाय 2 प्लस c, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, द आंसर इज sin 2x प्लस c। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि जो हमारे एलिमेंट्री मैनिपुलेशंस है उससे हम कैसे अपने क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन हो जाता है। दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन जिसमें हमें सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में समहाउ बदलना है थ्रू सिंपल मैनिपुलेशंस या कन्वर्जन्स।